Well, news just coming in that Congress and AAP have announced seat sharing for the upcoming Lok Sabha elections 2024. Congress General Secretary and MP Mukul Wasnik says Haryana has 10 Lok Sabha seats. Congress will contest on 9. AAP will have its candidates on 1 seat on Kurukshetra. He also says that after long discussion on Chandigarh, at the end, it was decided that Congress candidate will contest from there. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ, उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। Right, my colleague Madhurima is joining us live to get us the latest details on this. Madhurima, of course, we know that Congress and AAP have announced the seat sharing for the upcoming Lok Sabha elections 2024. If you could take us through the latest details. Well, yes, absolutely. This particular press conference details it all, that to how the Congress and the Aam Aadmi Party are going to contest the election, the crucial Lok Sabha elections. Now, what needs to be seen here is that if we talk of Delhi, where both the parties have no MPs because 7 on 7 were won by the BJP in the last elections, so there has been an amicable distribution of 4 and 3, where 4 belongs to the Aam Aadmi Party and 3 to the Congress. But when we look at Punjab, the Aam Aadmi Party is standing firm that they are going to go solo, only giving 1 seat of Chandigarh to the Congress, because remember that Aam Aadmi Party has performed well in the past elections, both assembly and general in the state of Punjab, and they would not want to weaken their niche, and they believe that they'll able to pump out more MPs into the parliament from the state of Punjab, and they have better chances of performing there in comparison to any other states, which is why we say that there is no issue cropping up in the state of Haryana, as well as maximum seats going to the Congress there. And similarly in Goa as well, both the seats to be contested by the Congress party. So now we see that finally, after a lot of brickbats that the India Alliance had enthralled because they were not able to come on consensus, we see that couple of months ahead of Lok Sabha elections in few states, the
Congress and the Aam Aadmi Party are coming on board with the seat distribution, looking at the past performance of the respective parties in the last general elections and the assembly elections as well. We'll have to wait and watch as to see whether if there is any improvement in the states down south or in Bengal. Back to you. Right. Thank you, Madhurima. Stay on with us. We'll cut across to Amandeep, my colleague, who's also joining us. Amandeep, a very important point here that the last performance of the political party has been kept in mind in this entire seat-sharing distribution. And finally, दोनों लड़ेंगे। असम में 3 सीट पर जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया है, क्या यह माना जाए कि उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। और इधर सर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट अगर ठीक देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ क्या? को आप एक अच्छा जवाब दे पाएंगे कि सम्मानजनक सीट शेयरिंग के साथ आज आप लोगों ने पब्लिक शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। जो बात आप लोग कह रही थी कि गठबंधन को लेकर भाजपा असहज है, लिहाजा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब भी आप लोगों को ऐसा अंदेशा है? ये बिल्कुल 100% सही बात है कि जब से गठबंधन तय होने की बात हुई, जब से खबर मीडिया में आ गई कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, तब से हर तरफ से धमकियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आने लगी। हमें ये कहा गया कि अगर आप इस गठबंधन से बाहर नहीं आते हैं तो पहले तो ईडी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार